Good morning, students. Hello students, welcome to your English classes. So today in this class we will discuss the second unit of your book, and that is people who are differently able. So students, in this unit we're going to learn about what is actually disability means and how many wonderful disabled people overcome their disabilities. If we talk about this chapter 1 of your second unit. So this chapter tells about the magnificent sports personality or sports person Tanny Grey-Thompson, who achieved success in spite of being disabled. Tanny Grey-Thompson is a former wheelchair racer and a Paralympic medalist. After her Paralympic career, she worked as a television presenter and later became a member of parliament. That means she achieved so many things in her life despite of being disabled. And before starting the chapter, let me tell you something about this wonderful person. Tani was born on 26 July 1969 and christened as Carius Devina. That means उनका जो real name है वो क्या है, Carius Devina. But when her 2-year-old sister Sian first see her, she nicknamed her Tiny. उनकी जो सिस्टर है उन्होंने जब उसको देखा तो उसका उनका नाम टाइनी रख दिया था. एंड वेरी शॉर्टली आफ्टरवर्ड इट बिकम्स तानी. तो जो टाइनी उन्होंने नाम रखा था वो आगे चल के कैसे फेमस हुआ, तानी नाम से. दैट्स व्हाई हर नेम इज नाउ तानी ग्रे थॉम्सन. So let's start the explanation of the chapter. So, I feel very fortunate that sport has always been a part of my life. As an independent and determined youngster, I tried to never let my disability stand in the way of pursuit of my dreams. Sport gave me the chance to build my physical and emotional strength, including belief in myself and to learn incredibly valuable skills, and those were teamwork, discipline, and leadership. So now here, Tani is very fortunate. She is feeling fortunate. वो अपने आप को fortunate मानती हैं कि स्पोर्ट्स उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. एंड एज एन इंडिपेंडेंट एंड डिटरमाइंड यंगस्टर वो ये कोशिश करती हैं कि जो उनकी डिसेबिलिटी है वो उनके ड्रीम्स के आगे ना आए. मतलब कि जितना भी वो अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहती हैं उसमें इनकी जो डिसेबिलिटी है वो बीच में ना आए. वो हमेशा ये ट्राई करती हैं. एंड वो ये कहती हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो उनकी लाइफ में ऐसे काम करता है कि उन्होंने स्पोर्ट्स ने उनको सिखाया है या फिर चांस दिया है कि अपने फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे बिल्ड करना है. और उन्होंने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स के थ्रू. वैल्यूबल स्किल्स सीखी हैं और वो क्या है, टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप. The support I received from my parents and teachers was tremendous, and it allowed me to realize my Paralympic dreams, winning 16 medals over 5 Paralympic Games. I feel extremely proud to be referred to as a role model for other people with disabilities, and so pleased that my achievements might help others to overcome challenges. ना यहाँ पर तानी ये कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं अपने टीचर और अपने पेरेंट्स के लिए क्योंकि उन्होंने उनका बहुत सपोर्ट किया है. और वो ये भी कहती हैं साथ के साथ कि वो जब ये सोचती हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं जो डिसेबल हैं, फिज़िकली डिसेबल हैं और वो उनका रोल मॉडल है, तो वो ये सोच के बहुत प्राउड फील करती हैं कि उनके लिए बहुत प्राउड की बात है कि उन्हें देख के जो डिसेबल लोग हैं, जो उनकी तरह लोग हैं, वो एनकरेज होते हैं और अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं. तो ये वो सोच के उनको बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील करती हैं कि वो उनके अचीवमेंट का एक ज़रिया बन सकती हैं या बनती हैं. तो दिस इज़ वेरी proud moment for her, we can say. Sport can help to break down barriers and promote positive attitudes, and ultimately to give children with disabilities a chance to achieve their full potential. Now she is saying that जो sport है वो जितनी भी आपकी लाइफ में रुकावटें हैं उनको क्या करता है, तोड़ देता है. टू गिव चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अ चांस टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल. और ऐसे बच्चों को
जो डिसेबल हैं उनको अपना पोटेंशियल जानने में मदद करता है, और जितने भी उनकी चैलेंजेस को फेस करने में रुकावटें आती हैं उनसे उनको ओवरकम करता है. However, many millions of children living in poverty around the world are missing out on a fundamental right, the right to play. जबकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मिलियंस बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनको ये हक नहीं मिल पाता है कि वो खेल पाए. If they have a disability, they have got even less opportunity. अगर उन मतलब आप कह सकते हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि जो डिसेबल है उनको लेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया. दैट इज़ वाई आई बिकेम इन्वॉल्व विद इंटरनेशनल इंस्पिरेशन द लंदन 2012 समर ओलंपिक्स इंटरनेशनल लीगेसी प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड ट्रेवल टू जॉर्डन टू सी एट फर्स्ट हैंड द इम्पैक्ट दैट दिस एफर्ट वॉज हैविंग ऑन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन इन दैट कंट्री. और उन्होंने क्या किया कि वो ये जान पाएँ कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए कुछ करने के लिए उन्होंने क्या किया. लंदन 2012 समर ओलंपिक्स इंटरनेशनल लीगेसी प्रोग्राम में अपने आप को आप कह सकते हैं ज्वाइन करवाया, और खुद देखना चाहा कि जो कंट्री है वो ऐसे बच्चों के लिए क्या कर रही है. ऑल्दो स्पोर्ट इज़ वेरी पॉपुलर इन जॉर्डन, Jordanian schools have limited sports facilities and do not yet provide inclusive physical education lessons. और ये कहती हैं कि जो जॉर्डन है उसमें स्पोर्ट्स पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन वहाँ के जो स्कूल हैं वो उनको फिजिकल एजुकेशन के लेसन्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं या फिर नहीं करवा पाते हैं. देयर आर फ्यू पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स इन द सिटीज़ एंड इवन फ्यूअर इन रूरल एरियाज. और वो कहती हैं कि वहाँ पर प्लेग्राउंड्स एंड पार्क्स भी कम हैं. दिस इज़ इन पार्ट ड्यू टू द myriad ऑफ challenges लिंक्ड टू लोकल कल्चरल नॉर्म्स. और वो कहती हैं कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं, मतलब कि और भी चैलेंजेस हैं, जैसे जो कल्चरल नॉर्म्स के अंदर आते हैं आप कह सकते हैं. जैसे गर्ल्स डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन लिविंग इन Palestinian refugee camps, children with disabilities and other marginalized children are generally discouraged from participating in sports and play activities. और ऐसे जो बच्चे हैं जो घर से दूर हैं, जो इन कैंप में जो लड़कियां हैं जो रिफ्यूजी कैंप में जो लड़कियां हैं, और जो बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल्ड हैं, उनको डिस्करेज हैं और किसी भी आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्पोर्ट में या प्ले एक्टिविटी में. एंड बिकॉज मैनी पीपल स्टिल डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल, लिटिल एम्फेसिस हैज़ बीन पुट ऑन मेकिंग स्पोर्ट्स अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम. और अभी भी लोगों को ये रियलाइज नहीं होता है कि जो स्पोर्ट्स है कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी यंग पीपल की लाइफ में. इसीलिए थोड़ा सा लिटिल एम्फेसिस यहाँ पर लिखा है हैज़ बीन पुट ऑन मेकिंग स्पोर्ट्स पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम. और इसलिए थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं एफर्ट उठाया गया है कि जो स्पोर्ट है उसको स्कूल करिकुलम में ऐड किया जाए. वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ट्रिप वॉज अ विजिट टू सूफ कैंप. और वो एक आप कह सकते हैं इंसिडेंट बताना चाह रही हैं यहाँ पर कि जब वो सूफ कैंप में गई थी, वन ऑफ जॉर्डन्स पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कैंप्स, जो कि रिफ्यूजी कैंप में से एक था, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 20,000, जहाँ पर पॉपुलेशन क्या थी 20,000 की थी. द सूफ बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल, वहाँ पर जो स्कूल है सूफ बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल, sat within the camp and had more than 70 young boys between 4 and 16 years old. और उस स्कूल में, उस कैंप में जो स्कूल था सूफ बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल, उसमें 4 से 16 साल तक के बच्चे थे, और टोटल कितने 700 यंग बॉयज़ थे. विद फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्पिरेशन टू प्रमोट इंक्लूसिवनेस, वीकली sport sessions were established and involved children with disabilities. और उस स्कूल में उसमें ऐसे इवेंट्स रखे जाते थे या फिर आप कैसे स्पोर्ट्स के सेशन होते थे जो कि किसको ध्यान में रखे करे जाते थे कि टू प्रमोट इंक्लूसिवनेस एंड टू इन्वॉल्व दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन हु आर डिसेबल्ड. उनके लिए वो स्पोर्ट्स तैयार किए जाते थे. इन वन ऑफ द लेसन आई मेट अ बॉय कॉल्ड मैयद मोहम्मद.
बदरन। और वो क्या कहती हैं कि एक सेशन में एक बच्चे से वो मिली थी जिसका नाम था मैयद मोहम्मद बदरन, हु लेटर टुक मी टू हिज होम, जो कि उनको अपने घर भी ले गया था। मैयद यूज्ड अ व्हील चेयर, वो डिसेबल था, व्हील चेयर यूज करता था। एंड ही टोल्ड मी अबाउट द sports sessions and PE activities that he had been able to take part in alongside his friends। और उसने उसको बताया, तानी को बताया कि उसके स्कूल में या फिर जहाँ पर जिस कैंप में भी वो है वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स के सेशन होते हैं, और जिन्हें वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, जो कि फ्रेंड्स जो उसके हैं वो एबल्ड हैं, डिसेबल नहीं है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, वो खुशी की बात थी। ही वॉज सो एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज इम्प्रेस्ड दैट समथिंग सो सिंपल वॉज मेकिंग सच अ डिफरेंस टू मैयड्स लाइफ। और वो इस बात को देख के बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, इम्प्रेस थी कि ये छोटी सी खुशी उस जो मैयद है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज भी ला सकती है। सो दैट वॉज an incident who by this incident Tani was very much impressed. On the second day of my visit, I had the chance to speak to some Jordanian Paralympians and we shared stories about how sport had changed our lives। और वो बताती हैं नेक्स्ट डे उनको चांस मिला ऐसे जोर्डेनियन पैरालंपियन से बात करने का, जिन्होंने सबने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की कि किस तरीके से उनकी लाइफ को स्पोर्ट्स ने चेंज किया। दे रेनफोर्स्ड व्हाट आई हैव डन बिलीव्ड what I have long believed, that through sport people can find the determination to attempt and achieve amazing feats। Simple things such as including children with disabilities in PE lessons or giving young people the training that skills to obtain employment are really transforming lives in this country and elsewhere। उन्होंने क्या कहा कि वो जितनी भी स्टोरीज थी, जितनी भी उन्होंने स्टोरीज सुनी सबकी कि उन लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई, सो उन सब ने दे रेनफोर्स्ड व्हाट आई हैव लॉन्ग बिलीव्ड। और उन्होंने उसको जो उनका बिलीव था उसको और मजबूत कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया। दैट थ्रू स्पोर्ट, कि हम स्पोर्ट्स के थ्रू जितने भी लोग हैं या पीपल हैं वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और सिंपल थिंग्स भी, जैसे सच एज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन पीई लेसन्स, मतलब कि जो फिजिकल एजुकेशन के लेसन होते हैं उसमें डिसेबल बच्चों को इंक्लूड करना और उनको, और यंग पीपल जो है उनको ट्रेनिंग देना एंड स्किल्स उनको उनकी बढ़ाना, किस लिए, टू एम्प्लॉयमेंट। और इन सारी बातों ने, आप कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों से जितनी भी लाइफ्स हैं वो सब क्या हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, अच्छे में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। सो अ नंबर ऑफ स्कूल्स इन टर्की होल्ड और आर प्लानिंग पैरालंपिक school days, as part of which children without disabilities are given the chance to move around in wheelchairs and play sports blindfolded and thus develop empathy and engage in recreation alongside peers with disabilities। Now यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है, a number of schools in टर्की में बहुत सारे स्कूल ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि पैरालंपिक स्कूल डेज मनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जितने भी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो डिसेबल बच्चों की तरह मतलब खेलेंगे, जैसे कि व्हील चेयर पे। सपोज कोई भी बच्चा ठीक है लेकिन उसको व्हील चेयर पे खेलना होगा, या फिर ब्लाइंड फोल्ड, आंखों पे पट्टी बांध के खेलना होगा, जिससे क्या हो, उनमें एम्पैथी बढ़े उन बच्चों में, किसके प्रति, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं। इससे क्या होगा कि वो उनके साथ खेल पाएंगे, उनके साथ अच्छी बातें सीख पाएंगे और एम्पैथी सीख पाएंगे डिसेबल बच्चों के प्रति। In India and Indonesia, special Olympic events address negative perceptions towards intellectual disability. This vital work challenges stereotypes and changes attitudes, focusing on what children with disabilities can achieve rather than what they cannot। Now वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे कि डिसेबल बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा, तो आप कह सकते हैं जो स्टीरियोटाइप, जो पुरानी आप कह सकते हैं जो पुराना माइंड है लोगों का, जो ये कहता है कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को बदलेगा एंड उनके एटीट्यूड को चेंज करेगा और इस बात पे फोकस करेगा कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कैन अचीव, अगर वो डिसेबल है तो वो अचीव कर सकते हैं, रादर देन व्हाट दे कैन नॉट। और इस पे फोकस ना करके कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करेगा कि
कि वो क्या अचीव कर सकते हैं। Despite these steps, children with disabilities remain among the most disadvantaged in the world. साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि इतने सारे स्टेप्स उठाने के बाद भी कि डिसेबल बच्चों के लिए ये किया जा रहा है या वो किया जा रहा है, बट उसके बाद भी वो कहती हैं कि जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज ही रहेगा जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। Every Olympic year presents an opportunity to further the inclusion of children with disabilities. और हर साल जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें ऐसे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है जो डिसेबल्ड होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और ना वो कहते हैं कि इस बार नेक्स्ट कह सकते हैं नेक्स्ट ओलंपिक जो होस्ट होगा वो कौन होगा, रियो दी जनेरियो, जो कि आप कह सकते हैं सिटी है ब्राज़ील में, और ये होस्ट करेंगे इस गेम को टू कंटिन्यू द फाइट टू इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एबिलिटीज़ इन द प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट, कि ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स को इंटरेस्ट के साथ लेते हैं वो सारे उसमें वेलकम है। सो दिस वाज वर्ड्स वी कैन से ऑफ तानी ग्रे थॉम्सन, कि वो क्या सोचती हैं या क्या फील करती हैं, तो उन्होंने वो इस में बताया है। एंड वी मस्ट से दैट तानी ग्रे थॉम्सन वाज अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. Still she is a inspiration for all of us. So I hope you all got the chapter.